Morning students, last class we have discussed about 8.17. We have completed 8.18. Predict which of the following will be colored in aqueous solution. That means which are having the unpaired electron, so they will show the color here. So you can see here Ti, what is coming 3 plus. Ti 3 plus means it is coming D1 configuration. V3 plus means it is coming D2 configuration. And Cu plus is showing here, only we can see here Cu plus is actually Cu is coming here 3D10 and 4s1, so it is coming 3D10, so it will not show any type of color there because of they are getting which one, completely filled d orbital. and next one is coming, देखो Sc3 plus, ये तो जीरो ही है, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्कैंडियम की आर्गन हो गया इसका. और इसके बाद आपके पास आगे तो ये भी नॉट शोइंग Mn2 प्लस है ना. तो Mn2 plus means it is coming here about the 3D5, so they are also half filled condition, but they can also show Mn2 plus. and Fe3 plus, Fe3 plus means again it is coming 3D5, they also will show. and cobalt 2 plus, that is coming about 3D7, that also can show, because here 3D7 means how many are remaining, so here it is coming 5 and 2, that means it is coming 3 are remaining, so 3 are unpaired electrons are present, so they all will show except which one, scandium 3 plus will not show, and copper 2 plus will not show, copper plus will not show, and scandium 3 plus will not show, because they are not having any type of unpaired electron. Okay, next one we are coming okay, and one more is given titanium 3 plus. So titanium 3 plus is coming about the 3D1, titanium 3 plus is 3D1 और वेनेडियम 3 प्लस इज एक्चुअली 3D2. तो ये कंडीशन है. तो इसमें आपको सभी को लगभग शो हो जाएगा क्योंकि सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट Sc3 प्लस एंड Cu प्लस. ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी वी कैन से द है ना, तो VCr Mn जो मैंगनीज, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल. So you can see that 1 +2 oxidation state will be decreasing. Why it is decreasing? Because the unpaired electron is increasing. First it is increasing, then it is decreasing here. So we can see the effective nuclear charge is increasing. So ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2 is coming here more. So definitely negative जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दैट इज कमिंग लेस है ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज एक्चुअली डिक्रीजिंग. तो इन दैट कंडीशन यू कैन से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, if we are considering about the +2 oxidation state, so +2 oxidation state decrease because of the negative potential from left to right is also decreasing, but stability is coming here in case of which one, in case of Mn2 plus and in case of copper and zinc, so it is coming Zn2 plus. So both the condition is showing the stability because they are after losing 2 electron they are getting here 3D5 and it is coming here 3D10. So when they are half filled or full filled condition they are getting the stability, otherwise more stability they are showing, otherwise the stability is decreasing because +2 oxidation state stability is decreasing here because of the नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दैट इज डिक्रीजिंग. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाए तो दे आर नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, दे आर रिड्यूसिंग पावर विल बी डिक्रीज्ड एंड सो दे विल नॉट बी ऑक्सीडाइजिंग. तो they themselves they are not oxidizing, their reducing power also will be decreasing there. So in that sense +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, और इसमें दोनों में रहेगा एक्चुअली 3D5 और 3D10 में. अच्छा, नेक्स्ट वन यूर कमिंग फॉर कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स एंड द लैंथेनॉइड्स. ये तो यहाँ पे जैसे 4D और 5D लैंथेनॉइड्स के लिए कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस क्या आएगा, एक में 4D आएगा और एक में 5D फिलिंग ऑफ होगा.
3D 4D 5D एंड हाँ 6 7S 7P, तो इट इज़ कमिंग 60। तो एक तो 4F और एक 5F वाला कंडीशन यहाँ पे फिलअप होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यहाँ पे +3 एक्टिनॉइड के लिए, लैंथेनॉइड के लिए +3 मेन होगा, +2 एंड +4 ऑल्सो विल बी देयर, बट एक्टिनॉइड के लिए बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ये तो ऑलरेडी एक्टिनॉइड्स आपके पास लर्न नहीं है, तो एक बार रीडिंग लगा देना इसका एटॉमिक और आयनिक साइज। यहाँ पे भी इसका भी लैंथेनॉइड्स का भी डिक्रीज होगा, एक्टिनॉइड्स का भी डिक्रीज होगा। एक्टिनॉइड्स का डिक्रीज मोर होगा क्योंकि 5F का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है देन 4F, तो इसका अट्रैक्शन, एक्टिनॉइड्स का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? ऑफ द D4 स्पीसीज Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल मैंगनीज 3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। तो ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि Cr2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cr3+ एंड Mn3+ इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। रीजन क्या है कि Cr2+ इट इज दोनों ही क्या है, D4 कंडीशन, ये भी D4 है, ये भी D4 है। Mn3+, तो Mn की क्या है 3D5 एंड 4s2, तो आफ्टर 3+ दे आर गेटिंग D4 कंडीशन। क्रोमियम की क्या है 3D5 and 4s1, so after releasing 2 electron they are getting D4 condition, so both the D4 conditions are there, but Cr2+ is converted into Cr3+, so D4 is converted into D3, that is called stable T2G condition is coming, and D4 is here converted into D5, they are getting the electron. So when D4 is converted into D3, that is half filled, है ना, so they are actually losing the electron and they are getting D3 configuration, they are getting and they are gaining the electron and they are coming here D5 configuration. So when they are losing the electron, they are reducing because itself they are oxidized, losing the electron, तो definitely क्या हो जाएगा, they are strongly reducing agent, and Mn3+ is converted in Mn2 means they are oxidizing agent, itself they are रिड्यूस्ड। Mn3+ से Mn2+ हो जाते हैं, मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं, बट दे आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत बार ये डिस्कशन हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते, क्रोमियम टू Mn मैंगनीज, तो इसका अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होता है और क्रोमियम की रिलीजिंग का टेंडेंसी, क्रोमियम की साइज Mn से कम होता है, तो इसलिए क्या होता है दे आर रिलीजिंग एंड दे आर अट्रैक्टिंग, इसलिए दे आर कन्वर्टिंग टू D5 एंड दे आर कन्वर्टिंग टू D3। Clear? So they are strongly reducing and they are strongly oxidizing. अच्छा, next one is coming कि cobalt is stable in aqueous solution, cobalt 2, but it is converted to cobalt 3 when they are complexing reagent forming. मतलब cobalt 3, cobalt 2, CO2+, CO की क्या होता है ना D7 condition, 3D7 and 4s2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 27, एटॉमिक नंबर 27 है, तो 2+ मतलब क्या हो जाएगा, दे आर गेटिंग 3D7, तो they are getting 3D7 means how many 3 unpaired electrons are there, है ना, और when they are converting to CO3+, तो और एक इलेक्ट्रॉन they are losing, तो 3D6 condition, 3D6 में 4 unpaired electrons are present there, तो यहाँ पे ज़्यादा unpaired electron जो आएगा, unpaired electrons are present there, so जहाँ पे ज़्यादा unpaired electron वहाँ पे complex formation ज़्यादा active होगा, तो that's why when they are forming the complex they are actually converted to CO3+, okay, otherwise their stability is CO2+. Next one is coming D1 configuration is very unstable in ions. D1 because after releasing the 1 electron they are getting noble gas configuration, so that's why D1 configuration is very unstable in the ions, okay. D1 configuration नहीं रहता है, D0 में convert हो जाता है क्योंकि after getting that one they are getting stable electronic configuration. अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शन, ये तो डिस्कस इनसाइड लेसन में है। व्हिच मेटल इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1, तो कौन सा +1 शो कराता है ना कॉपर, क्यों +1 शो कराता है ना, कॉपर की है 4s1 एंड 3D10, सो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे आर गेटिंग 3D10 कॉन्फिगरेशन, सो कॉपर इज द एटॉम दैट इज और आयन दैट इज शोइंग द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D1। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कमिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन द फॉलोइंग गैसियस आयंस, तो इसमें आपको व्हिच वन ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सा देके रखा है Mn3+, तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो इजी है, आप तो कर ही सकते हो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8.24,
इसमें व्हाट आर शोइंग टू अस Mn3+, Cr3+, V3+ एंड Ti3+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख लेते हैं कि इधर वी कैन राइट डाउन हेयर 4s2 एंड 3d2. So 3+ means what is the electronic configuration will be remaining here? Now 3d1 है ना, and in case of 4s2 and 3d3 है ना, वेनाडियम के 4s2 3d3, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या हो जाएगा 3d2 एंड इसके बाद क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+ में क्या आ जाएगा ना, क्रोमियम में आ जाएगा 4s1 एंड 3d5, तो इट इज़ कमिंग हेयर 3d1 2 3 3d3, दिस इज T2G कंडीशन। इसमें भी स्टेबिलिटी आएगा, D3 में भी स्टेबिलिटी आता है, और Mn3+ में क्या होता है ना 4s2 एंड 3d5, तो आफ्टर 3 दे आर गेटिंग हेयर 3d4। तो अभी क्वेश्चन ये है, तो ये हो गया आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसके बाद क्वेश्चन आपके पास ये है कि व्हिच वन ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल है ना इन एक्वा सॉल्यूशन। तो मोस्ट स्टेबल कौन आएगा 3d3 वाला कंडीशन, बिकॉज दे आर गेनिंग द T2G स्टेबिलिटी, सो दैट्स वाई डी ऑर्बिटल की इसमें भी स्टेबिलिटी आएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होगा, तो दैट्स वाई Cr3+ इज गेनिंग द showing the more stability here. Next one, here coming, give example and suggest the reason for the following features of the transition metal chemistry. Lowest oxide of transitional metal is basic and highest is amphoteric, तो और acidic। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके पास बोल के रखा 8.25 है ना, तो MnO तो यहाँ पे +2 और Mn2O7, तो यहाँ पे कितना है ना 7 Mn2O7, तो इसमें कितना आएगा 7 2 14 -2 माइनस, तो यहाँ पे 7 2 14 और यहाँ पे 2, दैट मीन्स 6 इज कमिंग देयर, तो ये +6 और +2, ठीक है। तो इसमें दैट विल बी शोइंग द एसिडिक बिहेवियर एंड दैट विल बी शोइंग द, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन इज देयर, व्हाई दे आर शोइंग द लोएस्ट ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर and this one is highest acidic in nature. So definitely +2 means 2 electrons are lost here, so electron losing is less in number, so definitely when all of you know that one, base means which one, that is losing the electron है ना, losing electron, so it can lose the electron, so they will be showing the basic oxide. And here what is +6, so they are showing, this is actually showing the electrovalency and or electrovalent compound they are showing here, and here it is coming the covalent compound or covalency they are showing. तो here it is coming +6 को छोड़ना मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना दैट इज डिफिकल्ट, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब छोड़ ही देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत कम हो गया, प्रोटॉन के नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट्स वाई they can attract the electron. So when they attract the electron, they are showing the acidic oxide. Okay, so higher oxidation state is showing the acidic nature of the oxide, and lower oxidation is showing the basic nature of the oxide. Okay, 8.25 and अच्छा, ट्रांजिशनल मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड, बिकॉज ऑक्साइड ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दे आर आयोनिक मतलब एटॉमिक साइज इज वेरी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग द transition metal exhibit the highest oxidation state in oxide and fluoride. But again one more question is there, the highest oxidation state is exhibited in oxoanion, मतलब ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराता है, why is the reason behind that, ऑक्सीजन की साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन इज शोइंग फॉर्मिंग द मल्टीपल बॉन्ड, ये डिफरेंस है ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच who is showing the highest oxidation state, that is the oxygen, because means oxoanions, because their size is less, electronegativity is more also, as well as they are showing the multiple bond, जैसे फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए they are actually showing the highest oxidation state here. अच्छा, ये एलॉयज वगैरह यहाँ पे देखो, और एक क्वेश्चन है 8.26 तो छोड़ ही देना क्योंकि है ही नहीं आपका। 8.28 व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल। देखो यहाँ पे आपको इनर ट्रांजिशन बतानी है, तो इनर ट्रांजिशन में स्टार्ट किससे होता है ना, एक तो लैंथेनॉइड वाला है ना, तो लैंथेनॉइड के
जो ये लैंथेनॉइड का 57 है तो 58 to 71 ये हो गया लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स में क्या हो जाएगा, दैट इज कमिंग अबाउट द एक्टिनॉइड्स में 89 मीन्स 90 to 103। हियर एक्चुअली इट इज़ 57 और इट इज़ एक्चुअली 89, है ना। तो 92 ये हो गया आपकी इनर ट्रांजिशनल सीरीज के अंदर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन ये है कि बोला है कि which of the following atomic number are the atomic numbers of the inner transition element। तो 29 तो नहीं होगा, और एक तो 59 होगा क्योंकि 58 to 31, तो यहाँ पे देखो ये है कि 57 to 71 और 89 to 103, तो इसमें से 53 आ जाएगा ना। कौन सा है, 59 है ना। एक तो है 59, ये आ जाएगा, 59 आ जाएगा। उसके बाद आगे आपकी 74 भी नहीं आएगा। 74 किस में आ जाएगा ना, डी ब्लॉक में आ जाएगा, क्योंकि 71 तक ही इनर ट्रांजिशन है। उसके बाद आ जाएगा 95, सो 95 इज ऑल्सो कमिंग, तो 95 इज ऑल्सो कमिंग देयर। एंड 102 भी आएगा क्योंकि 103 के पहले ही है। और 104 नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजिशनल मेटल में आ जाएगा। तो ये 3 है इनर ट्रांजिशनल मेटल। Okay, so others are actually, they are actually electronic configurations are already given. Next one also same thing, I think. All are actually we are unpaired electron and all these things. Electronic configuration of the element, the atomic number, है ना। तो 61 means 57, तो it is coming about the जेनॉन के बाद ही आएगा। और 61 मतलब 57, 58, 59, 60, 61, तो ये D4 F4 वाला कंडीशन आ जाएगा। ऐसे ही आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा इसको, और राइट डाउन द 3 digits। ऑल आर एक्चुअली हियर हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ओके, सो यू जस्ट गो थ्रू इट and find out। Okay, so you just these are already atomic numbers are given actually। and 60 जैसे 61 है ना, 91, 101, 109, 109 जैसे ये आ जाएगा आपकी मेटनेरियम। तो दैट इज ऑल्सो कमिंग इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगेन। तो इट इज़ कमिंग 14 हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 109 मीन्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इट इज़ कमिंग अबाउट द 67 कंडीशन। तो यहाँ पे 67 एंड 7s2, ऐसे आपको थोड़ा काउंटिंग करना पड़ेगा। और जैसे 61 में क्या आ जाएगा, 57 लेंथ था ना, तो 57, 58, 59, 60, 61, तो डी यहाँ पे 4f5 कंडीशन आ जाएगा, 4f5 एंड देन 6s2। डी तो आएगा ही नहीं, डी 0 है, तो 4f5 एंड 6s2 कंडीशन आएगा इसका। प्रोमेथियम इसकी नाम है। तो 4f5, 6s2। 91 भी वही है, आपके एक्टिनॉइड्स में आ जाएगा। 101 भी एक्टिनॉइड्स में आ जाएगा। और 109 जो है इट इज़ मेटनेरियम, तो ये आ जाएगा आपकी डी कंडीशन, मतलब रेडोन के बाद आएगा। एंड इट इज़ कमिंग 5f14 भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 67 आ जाएगा इसका, क्योंकि 103 लॉरेंसियम में ख़त्म होता है, और 104 में आएगा। सो 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, तो वही हो जाएगा आपकी 67, 7s2। ठीक है, 67, 7s2 ये हो जाएगा आपकी 109 कंडीशन। ओके।